Yes, students, in last lecture we studied about the basic, we can say, experiment performed by Mendel, ki how he checked ki how the characters are transferred from one generation to next generation, and we can say with the help of gametes they separate at the time of gamete formation and again fuse at the time of fertilization. Some of them, we can say, they are always present in pair, and sometimes they are dominant and sometimes they are recessive. So on the based on we can say on the basis of his experiment, he has proposed some general rules for monohybrid cross. Now here what is monohybrid cross? पहले इसको समझो. Mono mean single, hybrid mean the general cross for hybridization. तो mono single. Here single mean that means single character. That means single character. Single character जैसे मैंने लिया height. अगर यहाँ दो कैरेक्टर लेता मैं, that means one I have taken height और अदर में ले लेता मैं लिया सीड का कलर, तो ये हो जाता डाई हाइब्रिड क्रॉस. अगर एक और चीज ले लेता, मान लिया सीड की शेप ले ली, तो ये हो जाता ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. तो फर्स्ट ही proposed some general rules for monohybrid cross. That means he proposed some rules for single pair of contrasting character. तो उससे क्या किया, उसने कुछ जनरल रूल प्रपोज किए. नाउ दीज आर नोन एज लॉज ऑफ मेंडल और ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मेंडल और मेंडल से प्रिंसिपल. तो अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही हैज गिवन टू लॉज. फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल एंड सेकंड लॉ ऑफ मेंडल. फर्स्ट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो ये डोमिनेंट और सेग्रीगेशन क्या कह रहा है, पहले जनरल वो देखो. फर्स्ट मेड क्रॉस अप टू F2 जनरेशन. ऑलवेज वी हैव टू टेक प्योर पेरेंट प्लांट. ये कभी भी हाइब्रिड नहीं होगा. तो इसको हमने क्या किया, क्रॉस किया. F1 में आए सारे के सारे टॉल. ओके, नाउ सी हियर. According to first law of Mendel or law of dominance, characters are controlled by discrete unit called factors. That means the characters है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, एक paired unit है, that is known as factor. That is known as a factor. यानी कि कोई भी जो character है, these are controlled by factor, and these factors occur in pair. These factors occur in pair, and yesterday we have studied that these factors are now known as alleles, or we can say genes. तो different form of gene क्या होगी, allele होगी. We know that genes are present in pair, तो allele भी क्या होंगे, pair में होंगे. तो characters are controlled by factors, and factors occur always in pair. तो ये pair में है देखो. Okay, and in a dissimilar pair of factor, that means this is the होमोजाइगस कंडीशन. तो डिसिमिलर को हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो इफ देयर इज ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, देन ओनली वन फैक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ. तो दैट मीन्स in a dissimilar pair of factor, one member of pair dominates the other. तो जो डोमिनेट करता है उसको बोलते हैं हम डोमिनेट फैक्टर, और जो वी कैन से रिप्रेस होता है दैट इज नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर, और वी कैन से अदर इज रिसेसिव कैरेक्टर और फैक्टर. तो हियर एक तो डोमिनेट फैक्टर हो गया, एक रिसेसिव फैक्टर हो गया. एंड नाउ सी हियर वी हैव टेकन प्लांट टॉल, हियर प्लांट वर ड्वार्फ. तो सारे के सारे क्या है, टॉल आए. तो ये कंडीशन क्या आएगी, हेट्रोजाइगस. एंड हेट्रोजाइगस दिस इज नोन एज हाइब्रिड. तो इस हाइब्रिड में सिर्फ एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, दैट इज दिस कैपिटल टी. तो ये कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट फैक्टर हो गया, एंड स्मॉल टी इज ए रिसेसिव फैक्टर हो गया. ओके, तो दैट मीन्स इन कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर. वो किस में होते हैं, पेयर में होते हैं. डिसिमिलर में कौन एक्सप्रेस करेगा, ओनली वन.
Okay, now see. Mendel is given these are the gametes, parents, क्रॉस ऐसा दिखाना है F1 कैपिटल T स्मॉल t, all I tall. This is showing the Mendel's law of dominance. क्या कर रहे हैं कि if there is a pair of dissimilar we can say character है या allele है तो only one will express itself and that express itself is known as a dominant factor and other is known as recessive फैक्टर. इसको रिसेसिव फैक्टर के बाद हम रिसेसिव एलील कह सकते हैं. ओके, इसको हम डोमिनेंट एलील कह सकते हैं. अब आगे क्या हुआ कि दैट मीन्स जो स्मॉल टी था दैट मीन्स दिस कैरेक्टर था ये हिडन हो गया. ओके, टिल हियर वी आर थिंकिंग दैट कि ये इसमें मिक्स्ड अप हो गया और वी कैन से हिडन हो गया. देन व्हेन इट विल एक्सप्रेस itself. अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो. सपोज देयर आर टू नॉटी बॉय इन क्लास. एक है मोर नॉटी है और एक क्या है लेस नॉटी है. एक दिन स्कूल में दोनों आते हैं तो हु विल वी कैन से परफॉर्म बेटर, जो ज्यादा नॉटी है. एक दिन क्या हुआ कि ये नहीं आया स्कूल में तो जो लेस नॉटी था उसने अपने आप को क्या कर दिया एक्सप्रेस कर दिया. ओके, दैट मीन्स अगर दोनों एक साथ आते हैं तो ये इसके साथ मिक्स नहीं होगा, ये हिडन नहीं होगा, ये इसके साथ ब्लेंड नहीं होगा. ओके, जस्ट इट विल नॉट एक्सप्रेस इन itself. और सिंपल वी कैन से लाइक इन आवर स्कूल देयर इज प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल. ओके, सपोज दिस प्रिंसिपल इज कैपिटल टी, दिस वाइस प्रिंसिपल इज स्मॉल टी. दोनों एक साथ स्कूल में है तो हु विल एक्सप्रेस इटसेल्फ प्रिंसिपल. लेकिन ये है तो यहाँ पर इनका अलग रूम है, अलग काम है, अलग सिस्टम है, इनके साथ मिक्स तो नहीं हुआ. ओके, सपोज सम डे प्रिंसिपल इज ऑन लीव तो हु विल वी कैन से गाइड और हु विल द लीव द वाइस प्रिंसिपल. तो दैट मीन दिस ऑल्सो एक्सप्रेस somewhere in some condition. तो दैट मीन दिस कैरेक्टर विल नॉट मिक्स अप विद दिस. ये कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा. तो दैट मीन दिस इज ओनली हिडन नॉट मिक्सड अप. ये इसमें मिक्स अप नहीं हुआ. ओके, अब देखो फिर क्या हुआ. तो मेंडल प्रपोज अनदर लॉ दैट इज नोन एज मेंडल सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मीन टू सेपरेट. ओके, ये क्या कह रहे हैं कि एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. दैट मीन्स देयर आर टू एलील्स हैं, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. इसमें ऐसे ब्लेंडिंग नहीं होती. दे डू नॉट मिक्स अप विद ईच अदर. एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड. दैट मीन्स they would recover. कब होंगे? they recovered as in F2. कब recovered होंगे? F2 में. और कौन सा recover होगा? जो F1 में नहीं था. that means allele do not show any blending and both of characters are recovered as such without any blending, without any mixing or without any change in character in F2 generation. कौन सा? जो F1 में नहीं आया था. यानी कि ये जो हिडन कैरेक्टर हुआ था यहां पर इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F2 और किसी और जनरेशन में कहीं ना कहीं इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ. ये इसके अंदर मिक्सअप या ब्लेंड नहीं हुआ है. तो यहां से वर्ड क्या आया? सेग्रीगेट. सेग्रीगेट मीन टू सेपरेट. एंड वी नो दैट सेग्रीगेशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ meiosis or we can say gamete
फॉर्मेशन। ओके, तो यानी कि यहाँ पर जो दोनों एक साथ आए थे वो सेपरेट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ मियोसिस और गैमेट फॉर्मेशन। नाउ सी कैसे होंगे। हियर इन F1 all plants were tall. Now if we want to recover हिडन कैरेक्टर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सेल्फिंग करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि इसी के अंदर है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सेल्फ। तो दैट मीन्स ये इसी का पोलन हो गया, इसी का एम्ब्रियो सेक हो गया। तो गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दीज आर द मेल गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, these would be the female gamete. Now by their random we can say fertilization, so this capital T could go with this capital T, ये इसके साथ भी जा सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ जाएगा। ऑलवेज कैपिटल लेटर फर्स्ट लिखना है, देन स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पर तीन क्या है हमारे पास, टॉल, और ये क्या आ गया हमारे पास अगेन वापिस ड्वार्फ। तो ये ड्वार्फ क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट मीन्स यहां पर किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं हुई है। कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2, यहां जो हिडन हुआ था वो कैरेक्टर एज सच क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। कहां पर, F2 में, और हुआ कैसे, बाय सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कहां हुई, यहां पर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो यहां पर क्या हुई, सेग्रीगेशन में मियोसिस। इज क्लियर और नॉट। तो दैट मीन्स क्या कह रहा है कि एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दे रिकवर्ड एज सच इन F2, जो F1 में हिडन था या एक्सप्रेस नहीं किया। तो ये इससे आया हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, अब नाउ कंपाइल बोथ लॉ। In monohybrid cross we can perform the both law. Parents, phenotype, genotype, phenotype tall, dwarf, इसको मैंने ले लिया फीमेल, इसको मैंने ले लिया मेल। देयर इज नो डिफरेंस, चाहे मैं इसको मेल ले लूं, इसको फीमेल, और वाइस वर्सा, बिकॉज दी जीन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अगर ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया में होता तब प्रॉब्लम होती, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, देन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। इफ यू रिमेंबर, दिस इज द न्यूक्लियस, द स्पर्म हेड पार्ट and this, so only head part enter into the nucleus। इस पार्ट में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। so in human body और हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है that inherited from mother। तो there is no we can say difference, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे मैं टॉल को फीमेल ले लूं, चाहे मैं टॉल को मेल ले लूं। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ गैमेट्स, वी हैव टू एनसर्कल द गैमेट्स, दोनों एक ही तरह के बनेंगे, तो नो नीड टू शो द अदर। तो इसमें हम यहां पर क्या करवाएंगे, क्रॉस। तो इससे बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 और टॉल। तो दैट मीन्स थ्रो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अप टू F1, दैट मीन्स अप टू F1 वी आर शोइंग लॉ ऑफ dominance। now we have to recover the hidden character, इसको हम क्या करवाएंगे, सेल्फ करवाएंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तो ये क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। तो यहां से ये शो कर रहा है अप टू, दैट मीन्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस अप टू F2 इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो ये तो हो गया इसका फिनोटाइप। और अगर इसका जीनोटाइप देखें तो ये हो जाएगा 1:2:1, दैट मीन्स 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल एंड 1 ड्वार्फ। नो नीड टू राइट प्योर फॉर ड्वार्फ, ड्वार्फ होता है, उसकी कोई दूसरी फॉर्म है ही नहीं। ओके, तो फेनोटिपिक रेशियो वुड बी 3:1, जीनोटिपिक रेशियो वुड बी 1:2:1. So this is about the mono hybrid cross and law of dominance and law of segregation. Okay, अभी यहीं तक करना है। थैंक यू।